السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ اہم اور تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی باضابطہ اجازت دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تہوار 6، 7 اور 8 فروری کو منایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈز جاری ہوں گے، جبکہ فائرنگ، ہلڑ بازی اور قواعد کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حالیہ آرڈیننس کے تحت 25 سال بعد دوبارہ پتنگ بازی کی اجازت دی گئی ہے، تاہم 18 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی ہوگی اور خلاف ورزی کی صورت میں والدین ذمہ دار ہوں گے۔ صرف معمول کے دھاگے والی ڈور کی اجازت ہے، جبکہ دھاتی یا تیز دھار ڈور کے استعمال پر 3 سے 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ CCPO بلال صدیق میانی کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی امور، کرسمس، نیو ایئر نائٹ اور بسنت کے لیے سیکیورٹی پلان پر غور کیا گیا۔ CCPO نے موٹر سائیکل چوری کی روک تھام، فائنینشل کرائم کی FIRs کے فوری اندراج، زیر تفتیش مقدمات بروقت چالان اور پروسیکیوشن کے ساتھ پینڈنسی ختم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں DIGs، SSPs، SPs، ASPs اور انویسٹیگیشن افسران نے شرکت کی۔ سینٹرل پولیس آفس میں انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی پانے والے لاہور پولیس کے 49 افسران کو IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے رینک لگائی۔ تقریب میں افسران کے اہل خانہ کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ IG پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پولیس کو پہلے سے زیادہ وسائل فراہم کیے ہیں، CTD اور دیگر شعبوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے اور جلد سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ بھی تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ پروموشن محنت اور دیانتداری سے ملتی ہے، جبکہ دہشت گردی، جرائم کے خاتمے اور عوام کو ریلیف دینا فورس کی اولین ذمہ داری ہے۔ تقریب میں سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز نے AI اسمارٹ سٹی مینجمنٹ کا آغاز کرتے ہوئے جدید فیچر ٹاک ٹو کیمرہ متعارف کروا دیا، جس کے ذریعے افسران ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر کو براہ راست ہدایت دے کر کیمروں سے فوری معلومات حاصل کر سکیں گے۔ لاہور اور شیخوپورہ میں کامیاب تجربات کے بعد اس ٹیکنالوجی کو پورے پنجاب تک توسیع دی گئی ہے، جس سے شہری سروسز اور رسپانس میں نمایاں بہتری ممکن ہو رہی ہے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسموک تدارک سرگرمیوں میں تیزی لاتے ہوئے پنجاب کے 10 اضلاع لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بھاولپور، DG خان اور سیالکوٹ میں اینٹی اسموک مہم جاری ہے۔ DG PHA ناہید گل بلوچ نے درختوں اور گرین بیلٹس کی دھلائی سمیت تمام PHA ایجنسیوں کو کارروائیہ مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ترجمان کے مطابق ٹری واشنگ سے درختوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ماحولیاتی اور بصری آلودگی کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ سمندری کے نجی کالج میں نوواں اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ممبر قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے خصوصی شرکت کی اور ریبن کاٹ کر اسکول کا افتتاح بھی کیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں دلبیر حسین کی رپورٹ میں۔ سمندری نجی کالج میں نوواں اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ممبر قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور ریبن کاٹ کر نوواں اسکول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سابقہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سمندری حاجی محمد اسلم کے بیٹے چودھری عمار اسلم بھی شریک ہوئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس دوران ممبر قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دور میں 90s کی بات کروں، 90s میں MBA کرنے بڑی بات ہوتی تھی۔ کھڑے ہوئے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جہاں ساتھ میں کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، ڈسکشن کریں گے، باتیں سب کر رہے ہیں۔ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے نے اسپائر کیا ہے، اسپائر کا مجھے بھی پتہ ہے۔ تقریب میں بچوں نے بہترین ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اس دوران ممبر قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے نئے بننے والے ڈاکٹرز میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلبیر حسین، اسپیشل نیوز، تحصیل سمندری۔ کونسل خانہ بارسلونا میں کرسمس کی تقریب کونسل جنرل مراد علی وزیر کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ یہ اعلان پاکستانی مسیحی کمیونٹی اسپین کے وفد نے کونسل جنرل اور ویلفیئر اتاشی سے ملاقات کے بعد کیا۔ تقریب میں مسیحی برادری سمیت تمام مخاطب فکر کے افراد شرکت کریں گے، جبکہ وفد نے کونسل جنرل کا ہر سال مسیحیوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔
DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर ज़िला भर के अहम तालीमी और हसास मकामात जिनमें कैम्प्रीहेंसिव स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, सेंट्रल जेल और दीगर इदारों में सिक्योरिटी और एमरजेंसी रिस्पॉन्स की बेहतरी के लिए मॉक एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया गया। मशकों में CTD, एलिट फोर्सेस, स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमों ने शिरकत की। इन मशकों का मकसद दहशतगर्दी और हंगामी सूरत हाल में फौरी और मरबूत कार्रवाई की सलाहियत का जायजा लेना था। चंद रोज़ कबल पुलिस की कार्रवाई के बाद शहरी को उनकी ज़मीन का कब्जा दिलवाया गया था। ताहम कब्जा माफिया की जानिब से दोबारा ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे करम अली। जी करम अली, बताइए सब आखिर क्या मामला है। हुसैनाबाद में कुछ दिन पहले खानजादी बीबी को उनका ज़मीन बनता था, जो मरियम नवाज साहिबा ने कानून पास किया है, जिसका जो मालिक है वही हकदार है, उसको मिला जाए। लेकिन इसको जब पुलिस आई, ये तंबू लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, ये जब अपने तंबू लगा कर बैठी हुई थी यहाँ पे, उन्होंने ये तंबू का आला दे इनको भी उखाड़ कर फेंक दिया है। जो खानजादी बीबी है उनसे लड़ाई हुई, औरतें भी आए, उनसे मज़ीद जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने औरतें थी आपसे लड़ाई हुई। अम्मा कितने औरतान? अब्बा 20 औरतान 20 जवान, 20 औरतां 20 जवान, 20 जवानी था। मुल्क सारा जवान ते औरत थी गया। ये तंबू पहले इतना लगा ला तंबू मैं को पुलिस आ डरते तंबू केरे तक अम्मा। अच्छा, तंबू पुलिस आया तो को इतना तंबू ला देगे महकमे वाले भी हन तंबू हाँ मैं को महकमा वाले तंबू वाला पट मैं आया जो तंबू बहा मैं को चाकी देने इतना मारे नहीं, मिट्टी गते नहीं, मेरे कपड़े सारे फाड़ सटे ने वाला तंबू छिक मैं उड़ाई पानी पुसा नहीं। अच्छा, मैं आया मेरा पुलिस समझा तू कल ही था रांधी पी ब्याह कोई को ना अब्बा कौन मेरा नाम मेरा है पुट न दिन में अपनी बाली ना छोटे बाली ना इतना ही रांधी। हाँ हाँ था। रोटी पानी किथों दे? रोटी पानी उठाई एक पुट्ठे वो हो पठेगा। अच्छा, कोई लगन कोई अम्मा कितनी जमीन है जे रहता है को पुलिस उन्हें कन कब्जा घिनाते देगे? कितनी जमीन? कनाल घाटे करी 7 कनाल 7 कनाल। अच्छा, 7 दी कने जो बैठी हमें पहले तो हुए ना आए आज की में आए उन्हें को की में जाग थी जब नहीं यकाम दिन। अच्छा, यकाम दिन उठी हुई मरे सुई उठी हुई मरे सुई पुलिस आ क्या तू बाहर ते को न मरे से आज हमला की थी, आज हमला की थी। अच्छा, पब्लिक दी थे मैं कुरान में की थे भाई मैं को छोड़ देवा मरियम नवाज डरे मैं को वहीं कच थे मेरा इंतकाल है कंप्यूटर चले ना के तेरा प्यूट आए। अम्मा कितने साल कने उन्हें कने कब्जा उन तक पुलिस से जो घिनवा रही थे कितने साल कने कब्जा उन्हें? अब्बा 20 साल हो से मेरा अब्बा दा जमीन है। अब्बा मर गया भला मेरा चुराए वर्ष मर गया वाला नूह मर गया वक्फा थी गया और मैं बेवा थी अपना मैं क्या संभालूं अपना जमीन भी पुट अपना बाल परेशान में को। लेकिन मरियम नवाज साहिबा से हम अपील करते हैं अगर एक आपने कानून पास किया, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें, ये भी कानून बनाए, अगर इसके करीब कोई आए ऐसा कानून बनाए कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये बूढ़ी बेचारी अभी भी रो रही है मेरे सामने कि ये तंबू जो लगा हुआ है वो भी अब उन्होंने फाड़ कर रख दिया है। ये सामने अम्मी बूढ़ी बैठी हुई है, लेकिन फिर भी ये अपील कर रही है कि मरियम नवाज साहिबा से अगर हमें ज़मीन मिला है लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमें दें। जब ज़मीन इनको मिला, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो फिर वो दोबारा पुलिस चली जाती है, वो काबिज़ हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया करम अली, हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर में ट्रांसपोर्ट हड़ताल की अफवाहें बेबुनियाद साबित हुई और तमाम मुसाफिर गाड़ियां मामूल के मुताबिक रवा दवा रहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने अल्लाहवाला चौक और लारी अड्डा का दौरा करके रूट ऑपरेशंस, गाड़ियों की दस्तियाबी और किरायों का जायजा भी लिया, जबकि ड्राइवर्स और मुसाफिरों से भी सूरत हाल पर राय ली। मौसम इंतजामी निगरानी के बाइस ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल फाल रहा, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। झेलम में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी पिंड आदत खान की निगरानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी MNA चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ ने कहा कि हुकूमत जदीद मशीनरी की फराहमी से ज़राई पैदावारी सलाहियत बढ़ा रही है, जबकि डायरेक्टर ज़राअत शाहिद इफ्तिखार बुखारी ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को किसानों की मुआशी मजबूती के लिए अहम करार दिया। आखिर में मुंतखब काश्तकारों में ट्रैक्टर्स तकसीम किए।
किन्नू माल्टा और मौसमी को मौसम सरमा की खास सौगात समझा जाता है। दीना के इलाके बागात की मौसमी किस वजह से मशहूर है, तफसील देखते हैं मियां जुल्फ़िकार अहमद की रिपोर्ट। वैसे तो फलों की बादशाहत आम के पास है, मगर किन्नू माल्टा और मौसमी को मौसम सरमा का बादशाह माना जाता है। दीना के नवाही इलाका बागा के किन्नू माल्टा और मौसमी पंजाब भर में मशहूर हैं, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मौसमी के बाग में आए हुए लोगों का कहना था कि मौसमी के बाग में बैठकर मौसमी खाने का अलग ही मजा है। ये शिकरी माल्टा तैयार है इधर चकलमास में, ये इधर आए हैं तो बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, ज़बरदस्त माहौल है। बाकी बंदों से भी ये है कि सब इधर आए और आके एंजॉय करें। वैसे तो बाग में कई इकसाम के किन्नू माल्टे लगे हुए हैं, मगर रेड ब्लेड, शिकरी और बेदाना को खास अहमियत हासिल है। इंग्लैंड से आए थे तो अपने बस दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत ही बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि आज मौसम अच्छा है तो कहीं पर माल्टों के बाग में चलते हैं। तो I brought my few friends with me, so we came here, and as you can see, there is a lot of different type of oranges here, and we had them here. दीना के नवाही इलाका बागा के ये फल न सिर्फ जायके में मशहूर हैं, बल्कि अपनी खुशबू और मयार की वजह से पंजाब भर में पहचाने जाते हैं। बागों में हल्की सी ठंड, धूप की मध्यम किरणें और दरख्तों पर लटके रंग बिरंगे फल एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। बागों में मुख्तलिफ इकसाम के किन्नू और मौसमी लगाए गए हैं, जिनमें रेड ब्लेड, शिकरी और बेदाना मौसमी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इन इकसाम की ख़ास बात इनका गहरा रंग, बारीक छिलका और भरपूर रस है। मौसम सरमा की सौगात मौसमी और माल्टा अगर बाग में बैठकर खाए जाएं तो उनका मज़ा वाकई ही दुबाला हो जाता है। ठंडी हवा, धूप और हल्की तमाज़त और ताज़ा फल, यही सर्दियों की असल रौनक है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़, दीना, जेहलम। फिरोजपुर रोड पर रक्षा और वन व्हीलर मोटरसाइकिल के तसादुम से रक्षा उलट गया, जिसके नतीजे में 6 स्कूल के बच्चे शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ हस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। हादसा भावलपुर से स्कूल आने वाले बच्चों के रक्षे को पेश आया। कसूर में ताजरों के हंगामी इजलास में पैरा फोर्स की मुबैना ज़्यादतियों और तजावुज़ात के नाम पर की जाने वाली तोड़ फोड़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालिबा किया गया कि डिप्टी कमिश्नर ताजरों को एतमाद मिले और बिला जवाज़ कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाए। ताजिर रहनुमाओं ने मरियम नवाज शरीफ के विजन का हवाला देते हुए कहा कि इस आड़ में कारोबारी तबके को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है। अंजुमन ताजरान के सदर अकरम मुगल ने खबरदार किया कि अगर एक हफ्ते में मामला दुरुस्त ना हुए तो 3 दिन का शटर डाउन किया जाएगा, जबकि ताजिर तंजीमों ने नया बाजार में जारी मंसूबों और अंदरून शहर ट्रैफिक प्लान को भी मुस्तरद कर दिया। भावलपुर कैंपस में तकरीरी मुकाबला और ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर शिरकत करते हुए अपनी तकरीरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और कौमी जज्बे के तहत खून भी अतिया किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी नून लीगी MNA मियां अब्दुल गफ्फार ने तलबा और असातिज़ा की मेहनत को सराहते हुए कहा कि ये उनकी शबाना रोज़ कोशिशों का नतीजा है। डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर रिफत अली और डिप्टी डायरेक्टर औरंगजेब वट्टू ने मेहमानों की शिरकत और तलबा की हौसला अफजाई पर शुक्रिया भी अदा किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू मंसूर कमर की हिदायत पर ज़िला भर में सिक्योरिटी और क्विक रिस्पॉन्स मॉक एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP अब्दुल शकूर, SHO इरफान फैज़, राना हारून अख्तर और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने हिस्सा लिया। मशकों में मशकूक अफराद की तलाशी, अहम मकामात की चेकिंग और हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल की तरबियत भी दी गई, जबकि मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा को दहशत गर्दी से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये इक़दामात अमन व अमान के इस्तेहकाम और शहरियों के एतमाद में इजाफे के लिए अहम है। बुरेवाला में वज़ीर पंजाब मियां नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन को नाकारा सीवरेज लाइनों ने शदीद धचका पहुँचाया है, जहाँ मुतअद्दिद इलाकों में गंदा पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात, ताफुन और आमदोरफ्त में रुकावट का सामना कर रहे हैं। इलाका वकीलों के मुताबिक 12 शिकायत के बावजूद पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। शहरियों ने वज़ीर पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस और हंगामी बहाली इक़दामात का मुतालिबा किया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि ये जो साफ़ सुथरा
पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं या पंजाब बनाने की बात कर रहे हैं। ये देखें हमारे मोहल्ले में सीवरेज का बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है और बहुत सी बच्चों को बीमारियां इससे लाहक है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से ख़ास कर अपील है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का हल और नोटिस ले और इसका कोई हल निकाल के हमें इन बीमारियों से और इन चीज़ों से महफूज रखा जाए, तब तो हम मानेंगे ये साफ़ सुथरा पंजाब है। जी, मैं हाता शाहनवाज से मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ, वाई ब्लॉक गली नंबर 3 से। जैसा कि आप पीछे व्यू देख रहे हैं, हमने मुतअद्दिद दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है टीम में को, और लेकिन इस पर अमल दरामद हुई है। इससे हमारे बच्चे, मोहल्लेदार और नमाजी हजरात बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म से अपील है और TMA के ऑफिसर से कि फौरी इस पर अमल दरामद हो ताकि सहूलत मैसर हो। आए दिन ये प्रॉब्लम रहता है, हम फेस कर रहे हैं और कब तक ये फेस करते रहेंगे। ये गली नंबर 3 वाई ब्लॉक का इशू नहीं है, इसके साथ जितनी भी सराउंडिंग स्ट्रीट है, लाइक सैफुल्ला के साथ सारे टाउन में ये इशू आ रहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर आज तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे तनवीर अमान। जी तनवीर अमान, बताइए। जी बिल्कुल, डॉक्टर एसोसिएशन की कॉल पर आज तीसरे रोज़ भी डॉक्टर वर्दा के कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज सोम पर DHQ अस्पताल एबटाबाद में इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी भी की गई है। सूबा भर में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। हज़ारा के अलावा सूबा भर में तमाम अस्पतालों की OPD सर्विसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। डॉक्टर वर्दा की शहादत का आज तीसरा दिन है। कल इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई थी जिससे ये बात वाज़ेह हुई है कि उनकी जो मौत है गले की हड्डी टूटने की वजह और सांस रोकने की वजह से हुई है। ताहम कल सूबाई वज़ीर सेहत ने एबटाबाद का विज़िट किया था। उन्होंने डॉक्टर से मुज़ाकरात भी किए थे, लेकिन डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि आज डॉक्टर वर्दा का सोम है और आगे के लाएअमल का ऐलान वो आज करेंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कल मुज़ाकरात के दौरान ये बात वाज़ेह की है कि आपके तमाम तर मुतालबात जो है वो मान लिए गए हैं। अगर इस हड़ताल के दौरान किसी भी मरीज़ की जान ज़ाया होती है तो इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो डॉक्टर्स पर आयद होगी। जबकि डॉक्टर एसोसिएशन ने इनके बयान को एक धमकी करार दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया तनवीर अमान, हमें अपडेट करें। बकर में थाना सराय मुहाजिर पुलिस ने SDPO सदर सर्कल मंसूर अहमद खान की निगरानी में चोरी और राहजनी के 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 32 लाख रुपए, सोलर मोटर्स, इन्वर्टर्स, स्पीटर इंजन, मोटरसाइकिलें, बैटरीज और असलहा भी बरामद किया। DPO भकर शहजाद रफ़ीक अवान ने कार्रवाई पर SHO इकरामुल्लाह खान और टीम को सराहा है, जबकि शहरियों ने पुलिस की मौसर कारकर्दगी को सराहते हुए इलाके में जराइम में कमी की तवक्को ज़ाहिर की है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की काबीना से तारुफी मुलाकात में कहा कि प्रेस के साथ मिलकर ज़िला की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। प्रेस क्लब के सदर चौधरी शाहिद महमूद ने कहा कि सहाफ़ी हमेशा ज़िले के मसाइल की निशानदही और हल में इंतज़ामिया के साथ रहे हैं। जबकि जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान और इंतज़ामिया का तारुफ करवाया है। DC ने सहाफ़ियों की तजावीज़ और जज्बे को सराहते हुए खुशी का इजहार भी किया है। वादी नारान में शदीद बर्फबारी और सख्त सर्दी के बायस पुलदरान से बाबूसर टॉप तक सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जिसके नतीजे में मकामी आबादी ने नकल मकानी कर ली है। रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत -20 से नीचे जा रहा है और सड़कों पर शदीद फिसलन के बायस सफ़र मुश्किल हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि शमाली इलाकों के लिए कागान के बजाय KKH रोड इस्तेमाल करें, जबकि बाबूसर टॉप तक रोड अगले साल मई या जून तक बंद रहेगा। DPI सेकेंडरी स्कूल साउथ पंजाब जाहिद बतूल ने तोनसा शरीफ के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मोहतरमा ज़ाहिदा बतूल DPI सेकेंडरी साउथ पंजाब ने तौसा शरीफ में मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना किया। आप तहसील तौसा मेल एलिमेंट्री विंग के 2 स्कूलों में पहुंची, जहां आपने गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल नंबर 4 में विजिट के दौरान मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। बच्चों से जारी लेक्चर पर सवालात किए, मेयर ग्रुप का तफसीली जायजा लिया। ICCI रूम का दौरा भी किया और बच्चों में दूध के पैकेट भी तकसीम किए। बाद अज़ां आप गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल मगरोठा पहुंची और सिक्योरिटी ऑडिट भी किया। 2022 सैलाब के बाद स्कूल की तामीर पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील तौसा ने उन्हें ब्रीफिंग दी।
बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील तौसा का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब विजिट पर अल्लाह ताला के मशकूर हैं। स्कूल के तमाम असातिज़ा, हेड टीचर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर यकीनन इस कामयाब दौरे के बाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। कसूर में पाक चाइना दोस्ती की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीनी कौंसल जनरल, स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग के अरकान भी मौजूद थे। वफाकी वजीर मलिक रशीद अहमद खान ने कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और 70 साल से ज़ायद दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है, जबकि गवादर तक सड़कों की तामीर इस ताल्लुक़ को लाजवाल बना रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पाक चाइना दोस्ती बेमिसाल और मजबूत है और ज़िले में सड़कों और दीगर तरक्याती कामों के ज़रिए इमदादी सामान पहुँचाना भी बड़े इक़दामात में शामिल है। तिरंडा मोहम्मद पनाह में इज़दादे पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसके दौरान तहसील भर में 2,40,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि मुहिम के लिए 736 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि फिक्सड और ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी खुसूसी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। वालिदैन से अपील की गई है कि पोलियो टीमों के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों को लाजमी तौर पर कतरे पिलाएं ताकि इस मूजी मर्ज का खात्मा मुमकिन हो सके। सेवन शरीफ में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए खवातीन, जेब तराशी, चोरी और मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर्स तब्दील करने वाले 3 मुनज़्ज़िम गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन में 7 मर्द और 1 खातून समेत 8 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने 22 से ज़ायद चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एसेसरीज़ और IMEI तब्दील करने वाले टूल्स बरामद करके 3 मुकदमात दर्ज कर लिए, जबकि बरामद शुदा मोबाइल असल मालिकान के हवाले कर दिए। खैरपुर में तेज़ रफ्तार वैन की टक्कर से 8 साला बच्ची शदीद ज़ख्मी हो गई। ड्राइवर ने बच्ची को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर सिविल हस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म अली खान ने चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया। वो 4 साला मुद्दत के लिए खिदमत अंजाम देंगे। फैकल्टी और अमले ने उनकी तकर्रुरी का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़ियादत यूनिवर्सिटी की तरक्की और तालीमी मेयार में मस्बत किरदार अदा करेगी। नशर फ़िरोज़ में डिस्ट्रिक्ट बार के अलाइड बैंक अकाउंट में माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। वकला के मुताबिक 1,92,00,000 रुपए का रिकॉर्ड मशकूक, जबकि अकाउंट में मौजूद बैलेंस सिर्फ 9,87,000 रुपए हैं। निसार मुल्ला और दीगर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा करते हुए कहा कि वकला फ़ीस और सरकारी फ़ंड्स अमानत हैं और उनके इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। मीडिया दोस्तन जो तो एक दफ़ो असां ॿीहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कयूं पिया। असांजी डिस्ट्रिक्ट बार नौशर फ़िरोज़ जो हिकिड़ो बर्निंग इशू हले पियो थो। अकाउंटेबिलिटी जेका असां डिस्ट्रिक्ट बार अकाउंट जी आहे उहा प्रॉपर तरीक़े सां न पई थिए। हीअ जो पिंडोरा बॉक्स खुलियो आहे इहो तॾहिं खुलियो आहे जॾहिं 30 लख रुपया फेडरल लॉ मिनिस्ट्री तरफ़ां असां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ऐं जनरल सेक्रेटरी खे रिसीव थिया। त असां कुझु दोस्त हफ़्तो पहिरियां जॾहिं बैंक ते वियासीं त असांखे जेको फाइनेंस सेक्रेटरी असां सां गॾु हो शकील अहमद अब्बासी साहब, उन ॿुधायो त लास्ट 2 सालनि खां वठी 1,92,00,000 रुपया अची चुका आहिनि असां डिस्ट्रिक्ट बार अकाउंट में। पर जॾहिं असां उते अकाउंट जी पोज़ीशन ॾिठी ऐं असांखे अमाउंट ॾेखारियो त उन ते सिर्फ़ु 9,87,500 रुपया मैंशन थियल हो, जेका शॉकिंग न्यूज़ हुई असांजे लाइ। असां डिस्ट्रिक्ट बार में मेंबर आहियूं। असां डिस्ट्रिक्ट बार में एनुअल जेको 500 रुपया फ़ीस हर डिस्ट्रिक्ट बार जो मेंबर पेड कंदो आहे, पंहिंजे पॉकेट में असां उहो पेड कंदा आहियूं। ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पए त असांजे जेको डिस्ट्रिक्ट बार जो अकाउंट आहे उहो अगेंस्ट बायलॉज़ जेको सो रन कयो पियो वञे, जंहिंजे तहत असां अॼु जेके बायलॉज़ आहिनि पंहिंजे मुतलिका बैंक जे मैनेजर साहब खे जेको सो इहे पेश कया आहिनि ऐं एप्लीकेशन मूव कई आहे। कंसर्न अथॉरिटीज़ जा उन में नाला मेंशन आहिनि, जंहिंमें सेक्शन 4 में क्लियर लिखियलु आहे त इहो जेको अकाउंट आहे उहो अकाउंट प्रेसिडेंट ऑब्लिक जनरल सेक्रेटरी, इट मीन्स इन ॿिन्ही मां को हिकिड़ो माण्हू हूंदो। जॾहिं त कॉमन ॾिठो वञे त सिर्फ़ु प्रेसिडेंट एंड ट्रेज़रार मीन्स जेको फाइनेंस सेक्रेटरी साहब असां सां गॾु वेठो आहे ऐं उन खे सॼो साल का बि ख़बर कान्हे त इहो अकाउंट कीअं यूज़ थियो, किथे यूज़ थियो, एक्सपेंस काॾे विया।
सो इन करे असां पूरो हफ़्तो थियो आहे सरापा एहतिजाज आहियूं। असांजा जेके दोस्त आहिनि फाइनेंस सेक्रेटरी ऐं ॿिया मेंबर जेके आहिनि उन बेचैनी तमामु वधियल आहे, जंहिंजे लाइ असां जेको मिसयूज़ अकाउंट थिए पियो ऐं इम्प्रॉपर वे सां रन कयो पियो वञे, असां उन करे एप्लीकेशन मूव कई मैनेजर एलाइट बैंक जे ख़िलाफ़ु जेका 22 बि अॼु असां फिक्सल हुई, उन में वटि डेट थी वई आहे, जंहिंमें मैनेजर साहब पंहिंजा कमेंट्स ॾिना आहिनि त सिग्नेचरी अथॉरिटी जनरल सेक्रेटरी प्रेस ॾिना आहिनि। जॾहिं असां हुते अॼु पहुतासीं ऐं असां लाइव बि हलायो आहे त मैनेजर साहब खां असां पुछियो त तव्हां वटि अहिड़ो को अथॉरिटी लेटर आहे सिंध बार जे तरफ़ां प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर जे तरफ़ां, त काइंडली असांखे उहो ॾेखारियो। त उन्हनि असांखे रिफ्यूज़ कयो त साईं वाक़ई मूं वटि अहिड़ो अथॉरिटी लेटर कोन्हे को, बाक़ी मूं वटि सिर्फ़ु जेको नोटिफिकेशन इलेक्टेड बॉडी जो आहे जेको प्रेसिडेंट ऐं जनरल सेक्रेटरी खणी आया, जंहिंजे तहत मां हिन अकाउंट खे 2023 खां वठी टिल 2025 ते हलायां पियो, जेको अगेंस्ट बायलाज़ आहे। असां वकील आहियूं, असांजी जंग कलम ऐं कागज़ सां हूंदी आहे। अॼु असां मुतालबो कयूं था हिन फोरम ते मीडिया जे तवसल सां पंहिंजे कंसर्न अथॉरिटीज़ खे त काइंडली जेके प्रेसिडेंट ऐं जनरल सेक्रेटरी अगेंस्ट बायलाज़ जेको सो हिते जेको रन पैदा कनि असां डिस्ट्रिक्ट बार जो अकाउंट ऐं उनखे पंहिंजे पर्सनल यूज़ ते पैदा कनि उनखे पैसनि खे, त काइंडली इनखे अकाउंट खे फुल फोर्स सीज़ कयो वञे ऐं इन्हनि ॿिन्ही दोस्तनि खे स्टॉप कयो वञे, छो त इहे दोस्त डिस्ट्रिक्ट बार ते का बि जेको सो ऐं वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट से को बि टको बि ख़र्च कोन पिया कनि, जॾहिं ते पंहिंजे पर्सनल ज़ाती कम में इस्तेमालु पिया कनि, जंहिंजे करे असां तमामु मेंबर्स सरापा एहतिजाज आहियूं। ऐं असां सुभाणे परीं पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट बार जे जेको असांजी गेट आहे उन साम्हूं कैंप बि हणंदासीं। जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट खे असां हिन फोरम ते ॿुधाइण था चाहियूं त तव्हां महिरबानी करे दोस्तनि जी बेचैनी ख़तमु कयो। लिहाज़ा ही दोस्त जेके 800 मेंबर आहिनि असांजे डिस्ट्रिक्ट बार नौशर फिरोज जा, इहे सभु तव्हां खां टके जो हिसाबु वठंदा ऐं तव्हां खां असां सिर्फ़ु इहा रिक्वेस्ट कयूं था, तव्हां महिरबानी करे असांजी इहा जेका स्टेटमेंट आहे जेका इम्प्रॉपर वे सां तव्हां जेको मिसयूज़ कई आहे उन अकाउंट खे, उहो असांखे ॾेखारियो। या तव्हां MMC जी मीटिंग कॉल कयो, तव्हां उते जनरल बॉडी जी कॉल कयो, उन तमामु वकील ईंदा जेके वकील साहिबान पंहिंजो व्यूज़ ॾींदा, तव्हांजी उहा स्टेटमेंट ॾिसंदा, उन खां पोइ जेको अॻिते लाइमल हूंदो उहो वकील दोस्त पाण उनखे डिसाइड कंदा। सो असांजी रिक्वेस्ट आहे फोरम ते जे नथा कनि त असां हिन जे ख़िलाफ़ु इंशाल्लाह हाई कोर्ट बि वेंदासीं, सिंध बार बि वेंदासीं ऐं पाकिस्तान बार में बि वेंदासीं। ऐं असां अॼु जेको हीअ एप्लीकेशन लिखी आहे इन में असां जेको प्रेसिडेंट आहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में, असां उन खे बि लिखियो आहे त तव्हांजे मैनेजर साहिबु जेका आहे सो हिते प्रॉपर जेको सो असांजो अकाउंट न पियो हलाए, हे सिर्फ़ु 2 माण्हुनि जे चवण ते इहो अकाउंट हले पियो। बायलाज़ खे हिननि बाईपास कयो आहे, इहो अगेंस्ट जेको लॉ जेको हिन जेको एक्ट कयो आहे इहो इलीगल आहे, इहो नल ऐं वाइड आहे, असां हिनखे कंडेम कयूं था। लिहाज़ा हिन दोस्तनि खे असां रिक्वेस्ट कंदासीं महिरबानी करे और सुधरी वञो ऐं पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त कयो, न त वकील जाॻिया आहिनि ऐं तव्हां खां टके हिसाबु वठंदा। महिरबानी। उमरकोट में स्कार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ताउन से इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में ज़्यादा बदउनवानी के आलमी दिन पर आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में तलबा, असातिज़ा, सरकारी अफसरान और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रीन ने करप्शन के नुकसानात, शफाफियत की ज़रूरत, बेहतर हुक्मरानी, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात और नौजवानों के किरदार पर ज़ोर देते हुए कहा कि करप्शन इदारों को कमज़ोर और तरक्की को मुतासिर करती है। मुकर्रीन ने मेरिट के फ़रोग़ और करप्शन के ख़ात्मे के लिए इज्तमाही कोशिशों की अपील की है। मुल्क भर की तरह मीरपुर ख़ास में भी ज़्यादा बदउनवानी का आलमी दिन मनाया गया। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से प्रेस क्लब तक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और डायरेक्टर एंटी करप्शन रफ़ीक अहमद की क़यादत में आगाही रैली निकाली गई। रैली में अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि करप्शन जहर की मानिंद और इदारों को कमज़ोर कर रही है और इसके ख़ात्मे के लिए हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। स्पेशल टीवी से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल टीवी।